want to thanks to all the participants or organizers this webinar. Based on legal presumption, system, process. Now, the system of judiciary. If we are participant, are everybody is related to the judiciary advocacy. They will, after becoming a lawyer, they will go in practice in judicial exam, judicial preparation, public prosecutor, and company laws in different parts. The main fact of the judiciary is that access to justice for all. The motto of our government of India, our Ministry of Law, our Constitution of India, our Supreme Court of India, our different honorable high courts of different states. Access to justice for all is the theme, is the motto of our judicial system. The service of lawyer, the process of lawyer, the process of court, the process of police, the process of investigation agency, the process of all related to the concerned authorities related to the system is the based on justice for all. Justice for all means in the interest of justice. The interest of justice is first, and after then justice for all, as per our Constitution of India. So we think so. There is a divided into two parts. Some persons, some litigants, some lawyers, some judicial officers, very much aggressive to justice delay, justice denial. Always they are alleging that justice delay, justice denial. But some parts, some persons are facing justice hurried, justice worried. In a cases of media trial, number of cases, media trial in India, in media trial cases, media thinks so that media will register FIR, media will start investigation, media will file charge sheet, and media will argue on the point of charge and on the point of framing of charge and at the time of evidence and at the up to last stage. In that cases, justice hurried, justice worried come forward. So we should, every judicial officers, every lawyer, we are duty bound in this concern that we must balance justice hurried and justice worried between justice delayed, justice denial. Justice denied, justice delayed, justice denial is also wrong, but justice hurried, justice worried is also same type of wrong. So we think so that it is an important topic nowadays in judicial system, either before the London trial court, either honorable high court, either before the honorable Supreme Court of India. Most of the parties are facing it. But most of the parties are also saying tarikh par tarikh, tarikh par tarikh, tarikh par tarikh. Tarikh par tarikh, delay, justice deny means not only judicial officers, not only defense lawyer, not only prosecution, not only public person, not only investigation agency is responsible for justice delay, justice deny, tarikh par tarikh, tarikh par tarikh. We should, everybody, stakeholders of the every person, we should fought against this. If timely charge sheet filed, investigation complete, without any pressure of politics, without any pressure of media, without any pressure of money, we can say Dhanbal, Janbal, Bahubal, three type of pressure. If investigation agency avowed like this type pressure, then investigation must be fair. Investigation must be impartial and timely investigation complete. Charge sheet should file timely before the concerned court by the investigation agency. And after then, trial start. Before the trial court, either committal of the case by the learned before the session judge, then trial start by the session judge. Then trial must be impartial, without any pressure of media trial, without any pressure of money. So nowadays, I am very much happy to say the new generation of lawyers that now we can say कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई.
पहले कटपट्टी बंधी हुई थी, आज आंखों से पट्टी हटा दी गई है। हाथ में तलवार की जगह पर संविधान दे दिया गया। इसका मतलब हम दंड प्रक्रिया को हटा के न्याय प्रक्रिया को ले आए। यही हमारी संविधान की उपेक्षाएं थी, यही हमारी संविधान से अपेक्षाएं थी, यही हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चाहता था। तो कानून की देवी की पट्टी हट गई है। अब कानून की देवी देख भी सकती है, सुन भी सकती है, और कान भी खुले हैं। आंख, पहले कान तो खुले पहले भी थे, लेकिन आंखों से देख भी सकती हैं, और तलवार की जगह संविधान के अनुसार न्याय हो सकता है, न्याय मिल सकता है। और जिसकी अभिलाषा है, इच्छा है, हमारे देश की जनता चाहती है, क्योंकि हमारे देश में गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, मजदूर, मजलूम सभी तरह के लोग हैं। फ्रॉम गुवाहाटी टू चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये हमारा है। अनेकता में एकता हमारा नारा है देश का। तो इस सब के चलते हमें इस पर काम करना है। अपनी आगे आने वाली लॉयर्स की जनरेशन को निर्भीक, निष्पक्ष, निडर वकालत करनी है, लॉयल्टी के साथ वकालत करनी है। वैसे तो है तो ये जॉब थैंकलेस, बहुत कम लोग थैंकफुल रहते हैं लॉयर्स के प्रति, लेकिन हमें उस पे अपनी ड्यूटी को निभाना है। अपने कानून को जो हमें कार्य करना है उसके तहत हमें करना चाहिए, और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। Thank you so much, sir, for sparing your valuable time. Your profound insights on the media trial and the practical understanding of the criminal trials has provided the students with immense knowledge. Your understanding of the in depth analysis of potential impacts of these new criminal laws has given us a deeper understanding of how will they influence our legal system. Sir, if you are kind enough for a quick interaction session, our inquisitive participants want to ask a few questions from you, if you're kind enough Yes, to take these questions. yes, yes. Thank you, sir. Any questions, participants? If you may have any questions, you can ask, sir. Yes, ma'am. Yes, Bharat, please go ahead with the question. Madam, can I ask in Hindi? Yes, sir. Sir is equipped in Hindi and English. Thank you. Yes, yes, you can ask in Hindi. Hindi is our mother tongue. I also praise before the Honorable Supreme Court of India that judgment should pass in different state language. क्योंकि क्या है, जजमेंट में क्या होता है, अगर जजमेंट उसकी अपनी भाषा में नहीं होगा, केस उसकी अपनी भाषा में नहीं होगा, तो आधा अधूरा तो वैसे रह जाता है। कोई उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है, तो उसकी अपनी भाषा है, मातृभाषा है हिंदी, मातृभाषा है। आप उससे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। और अब तो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी, मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होने लगी। आई एम थैंकफुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का धन्यवाद करता। आप हिंदी में पूछिए, कोई प्रॉब्लम। सर, जैसा कि आपने मीडिया ट्रायल के बारे में बात करी, तो सर क्या यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलिस के बंद कर दे, बंद खुलासे का करके दे दे मेरे को। पुलिस के बस चढ़ खुलासे का जाओ, बैठ मीडिया जाओ, ट्रायल में हो, आजा। ताकि आरोपी को अपराध मतलब आरोपी के अपराध का पूर्व निर्धारण न हो सके, जैसा कि ये सुशांत सिंह राजपूत केस में भी हुआ मीडिया ट्रायल। हाँ, नहीं, सुशांत सिंह राजपूत हो, ब्रजभूषण सिंह का केस हुआ हो, मीडिया ट्रायल केस की नेचुरलिटी को, जो कहते हैं वास्तविकता को खो देता, कभी उससे पा नहीं पाता है। वो अपना परसेप्शन बना देती है कि इस तरह का ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। ट्रायल अभी चार्जशीट नहीं फाइल, उसे पेश किया जाता, दरिंदा, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, इस तरह के आरोप लगते हैं। मनी ट्रेल नहीं सिद्ध होती है, मनी ट्रेल नहीं आती, उससे घोटालेबाज, उससे बहुत भूमाफिया, इस तरह के शब्दों से वो इतना डिप्रेशन हो जाता है। और सबके बस की बात नहीं है। ये हुआ, मनीष कश्यप बिहार का हुआ, उसमें रासुका लगा दी, एनएसए हुआ। जब लगाया जाता केस तो उसको इतना बड़ा दरिंदा बना दिया जाता है, और जब बरी होता है, बाइज्जत बरी होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, तब ना तो मीडिया में कोई खबर होती है, ना कोई उसके लिए बाइट होती है, ना उसके लिए कोई नेता पहुंचते हैं, ना उसके लिए कोई मंत्री पहुंचते हैं खुशी व्यक्त करने, विरोध करने। सब हाथरस रेप प्रकरण हुआ, मैंने लड़ा, हाथरस रेप प्रकरण लड़ा वहां। मैं कहना नहीं चाहता, सभी राजनीतिक दल, सत्ता और पक्ष होता है, केस में सत्ता अगर है वहां तो विपक्ष सारा पहुंच जाता है वहां। उसकी हटाओ, मुख्यमंत्री बदलो, ये करो, वो करो, इस्तीफा दो, वो करो, मीडिया ट्रायल चलने लगता है। सीबीआई ने जांच की हाथरस के प्रकरण में, 2 साल में ट्रायल कंप्लीट हुआ, और 3
युवक जो उसमें थे बाइज्जत बरी हुए। किसी ने नहीं, चैनल ने दिखाया, किसी ने खबर नहीं दिखाई, किसी राजनेता ने नहीं कहा। और जो झगड़ा था, मैं कह रहा था, लड़का और लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, झगड़ा हुआ था, और झगड़े की वजह से उसमें झगड़ा माना गया, वो हुआ। अररिया की आरती यादव, छोटू यादव, मीडिया ट्रायल इतना कर दिया गया, ट्रायल चला, 2 साल में कन्विक्शन दिया, हम कंप्लेंट की तरफ से हुआ, न्याय हुआ। तो न्याय होने से पहले तक मीडिया ट्रायल नेचुरलिटी को खुलने का प्रयास, सुशांत सिंह राजपूत में भी ऐसे हुआ। केस की धारा ही मोड़ दी जाती है, उसको एक तरह से अलग ले जाने लगते हैं। जांच करने में इतना प्रेशर बना दिया जाता है पुलिस पर कि वो मीडिया को जवाब दें, विरोधियों को जवाब दें, उसके जो परसेप्शन बन रहा होता है उसका जवाब दें, कोर्ट में जवाब दें। और उसी हिसाब से एक आर्टिकल 377 फिल्म बनी, मेरे जीवन पे फिल्म बनी, तो उसमें आप देखेंगे कोर्ट भी मीडिया ट्रायल से प्रभावित हो रही है। पहले फैसला और कुछ लिखा गया, पहले फैसला और कुछ लिखा गया, लेकिन दो डबल बेंच है, एक जजेस एक खिड़की की तरफ देखने जाते हैं, एक जज साहब एक खिड़की की तरफ देखने जाते हैं, उधर हाय 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 नारे लग रहे हैं, और उधर होते ही वहां फैसला बदल दिया जाता है। तो ये न्याय नहीं है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस न्याय नहीं है, न्याय हित में कार्य होना चाहिए। इसलिए मीडिया ट्रायल पर भी बैन होना चाहिए कि केस को केस की तरह हो, चलने दिया जाए, और ये होना चाहिए। और सर, जैसे कि मीडिया से ब्रीफिंग करते समय पुलिस वालों को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? मतलब कई बार पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे हैदराबाद रेप केस में उनका एनकाउंटर किया गया, उसमें मीडिया ने उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। अब उनके ऊपर जब फूल बरसाए गए, हैदराबाद में फूल बरसाए गए, और बाद में उन्होंने जाके उनका इनकाउंटर कर दिया, ले जाके सीन रिक्रिएट करने के नाम पर, सीन रिक्रिएट करने के नाम पर उन लड़कों का इनकाउंटर कर दिया, मार दिए गए। और इनकाउंटर, अब मैं कह रहा हूं, पहले तो ये कहा गया सीन रिट्रीट करने पर भाग रहे थे, तो वो हथकड़ी पहना के ले जा सकते थे, पैरों में बेड़ियां ले जा पहना के ले जा सकते थे, नहीं भाग पाता, लेकिन मार दिए गए। मारने के बाद अब उन पर मर्डर का केस चल रहा है, उन पुलिस वालों पर। उस समय उन पर फूल बरसा दिए गए, लोगों ने हीरो बना दिया। तो इस तरह से पुलिस को ये फेस करने की ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती है कि मीडिया ट्रायल की ट्रेनिंग दी जाए उन्हें। तो वो उस समय हक्का बक्का रह जाते हैं, फिर जो उनका परसेप्शन होता है चलता रहता है। आज जिक्र हॉस्पिटल में ये हुआ, जांच को नहीं पाया, पहले शुरू हो गया। तो इस तरह से ये चीजें, कई चीजें ऐसी अब आ रही हैं वर्तमान समय को देखते हुए, कालो परिस्थितियों को। एक तो सोशल मीडिया थी ही, सोशल मीडिया वैसे ही आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया में भी ये चीजें आती हैं। कई इस तरह के चीजों को निष्पक्ष दिखाया जाए, केस को एक फैक्ट देके छोड़ दिया जाए। वो जजमेंट भी कर देते हैं, परसेप्शन भी बना देते हैं, लोगों के लिए वो शुरू कर देते हैं, उस पर वोटिंग इतने पे बटन दबाओ, ये बोलो, ये करो, ये करो, ये करो, आप ये चाहते, वो चाहते, मतलब ऑनरेबल कोर्ट निसहाय सी हो जाती है उन केसों में, जो कि फिर बाद में फैसले अलग आते हैं। वो चीजें होती हैं, तो ये होना तो सर, जो मीडिया ट्रायल पे एनएचआरसी, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है, उनकी सिफारिशें भी की गई थी, उनको अभी तक लागू नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा। चाहिए। अब देखिए, मीडिया एक ऐसा मकड़ जाल है, शब्द तो अच्छा नहीं है, लेकिन जिससे एनएचआरसी हो, चाहे हमारे राजनीतिक लोग हों, चाहे लोग हैं, लगभग थोड़ा सा बैकफुट पे आ ही जाते हैं। ब्रजभूषण सिंह का केस पिछले साल जुलाई से जनवरी से जुलाई तक मैंने देख देख रहा, पूरा संघर्ष करता रहा। कहीं पॉक्सो लगवाई जा रही थी, कहीं ये लगवाया जा रहा था, फिर वापस ले ली गई पॉक्सो, फिर पता चला माइनर नहीं मेजर है, जो खिलाड़ियों के बारे में कहा गया, फिर पॉक्सो हटा दी गई, फिर नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हो गई, फिर चार्जशीट पे आगे प्रोसीडिंग हो गई। लेकिन कहीं वहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था। हरियाणा चुनाव को केस से जोड़ दिया गया कि हरियाणा चुनाव है होने वाला, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, कहीं कोई सपोर्ट कर रहा है। देखिए, शिकायत करता होता है, उसे किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति मत बनाइए। मुल्जिम मुल्जिम होता है, एक्यूज एक्यूज होता है। एक्यूज की ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई क्षेत्र है, ना कोई भाषा है, ना कोई संप्रदाय है। लेकिन इस देश में मीडिया ट्रायल एक्यूज का धर्म भी बता
हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था जी। आवाज आ रही है? एम आई एडेबल? यस सर, यस। यस सर। ठीक। तो ये पक्ष और विपक्ष, राजनीतिक दलों को भी कभी केस में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन आज वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट के लिए, अपने जातिगत सपोर्ट के लिए लोग राजनीतिक दल भी आ जाते हैं। अगर ममता बनर्जी की सरकार थी तो इंडी गठबंधन ने नहीं सपोर्ट किया ममता आरजी कर में लड़की को। अगर वहां दूसरी जगह मणिपुर में थी, महिला महिला होती है, चाहे आरजी कर की हो, कलकत्ता की हो, चाहे मणिपुर की महिला हो, अगर उसके साथ यौन शोषण हुआ, घटनाएं हुई, तो सबको एक मत से अपराधियों के लिए बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, लोग बोलते हैं। कई बार क्या होता है, महिलाओं के प्रति इतना अधिक झुकाव दिखा दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला स्पेशल कोर्ट है, महिला की आइडेंटिटी छुपाई जाएगी, फिर पुरुष भी होना चाहिए। अगर हमारा संविधान कहता है, सबको एकता समता रखता है, तो फिर पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन होना चाहिए, पुरुष हेल्प डेस्क होना चाहिए, पुरुष थाना होना चाहिए, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, पुरुष के लिए भी सब कुछ होना चाहिए। समानता होनी चाहिए, संविधान कहता है। बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान, ये भी लागू होना चाहिए, लेकिन लागू नहीं हो पाता है। लोग पक्ष और विपक्ष को उस हिसाब से बना लेते हैं, जिसकी वजह से भेद होता है, जिसका परिणाम होता है। आपने देखा बेंगलोर में एक इंजीनियर ने आत्महत्या क्यों की? वो तो मेंटेनेंस भी दे रहा था, 9-9 केस लड़ रहा था, बेंगलोर से यहाँ आता था, इसमें जौनपुर हियरिंग पे कितनी बार आया, 350 बार आया, 1 घंटा 20 मिनट का लाइव दिया, 23 पेज का सुसाइड नोट लिखा। क्या परिणाम हुआ कि हमारी युवा पीढ़ी भी उस सुसाइडल डिप्रेशन से नहीं उबर पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें न्यायविदों को इसकी समानता लागू होनी चाहिए। आज पीड़ित हो चुका है मामला इस तरह से, वो समझना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं बनेगा Sir, your network is making some problem. Sir, your video is breaking. Sir, kindly check your network, sir. पार्टी में लफड़ा हुआ, ज्यादा टकीला पी ली थी, किसी ने कुछ गलत कह दिया, बार बात करने आए और बैंग बैंग। Thank Yes, you. sir. I would like to have a quick question. As per your extensive practical experience, has the new criminal law made a significant effect in criminal law system, or it is just a mere change in section numbers? No, it is not just a mere changing of sections and number of section. It will affect too much. I have a big experience it was 2014 in Haryana. Barwala Kand happened in Sant Rampal Das Maharaj. In that case, what happened? It's a very clear 950 950 लोगों पर देशद्रोह का केस लगा दिया गया, क्योंकि उस समय हमारी आईपीसी देश 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। उसमें कहीं कंटेंट्स थे कि इंडियन पे लगता है देशद्रोह, लेकिन 12 लोग उसमें नेपाल के थे, सिटीजन लिखा नेपाली, नेपाली नागरिकता, लेकिन फिर भी देशद्रोह लगा दिया गया। 14 बच्चों पर लगा दिया गया, उम्र लिखी लेकिन फिर भी लगा दिया गया। वो प्रूव करने में हमें 6 महीने लग गए, फिर उसके बाद रिहा हुआ, क्योंकि देशद्रोह। अब उस पर रिलैक्सेशन है, सेडेशन पे रिलैक्सेशन है। 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया गया, जो भारत के नागरिक भी नहीं थे, उन पर देशद्रोह, बच्चे थे उन पर देशद्रोह। लेकिन इस बात को हमें प्रूव करने में 6 महीने लग गए। तो ये क्या हुआ, व्यक्ति के परिवार पर क्या असर पड़ा? एक बच्चा 6 महीने तक जेल में रहे तो उन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। नेपाल में क्या हमारी छवि बनी कि हमारे नेपाल के लोग वहां गए और भारत में देशद्रोह का केस लगा दिया गया। जब मैं काठमांडू पहुंचा इंटरनेशनल जूरिस्ट के कॉन्फ्रेंस, लोगों ने वहां के मीडिया हाउसेस ने सवाल किए, लेकिन हम तो थैंकफुल थे, उन्होंने थैंकफुल कहा कि आपने उन्हें बचा दिया।
अगर मैं ना होता, कोई और पहुंचता जुडिशरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो कितना उसे बुरा लगता। मैं तो बचाने वालों में था, चलो 6 महीने लगे, लेकिन बचा तो दिया अंततः। तो नए बीएनएस और इस सब में परिवर्तन है, अच्छा है, सुधार का प्रोसेस लागू किया गया है, दंड प्रक्रिया के बजाय न्याय प्रक्रिया लाई गई है, तो निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी कोई पूर्ण नहीं होता, कोई बनाने वाला मेकर भगवान नहीं होता, ना महामहिम राष्ट्रपति भगवान होते हैं, ना देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भगवान होती है। गलतियां होती हैं, गलतियां इसमें भी हुई होंगी, पूर्ण सुधार के लिए अवसर है, फिर से चेंज होगा। जब भारत का संविधान इतनी बार चेंज हो सकता है, बदल सकता है, उसमें नए अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन संसार का नियम है। अब साइबर क्राइम अभी आया, नया नया आया, और बड़ा फ्रॉड होने लगा बड़े लेवल पर। अब आज डाइवोर्स के मामलों में मोबाइल फोन की बहुत महत्वता हो गई है। आज परिवार में मोबाइल फोन के मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। तो हमें इस नए नए सिस्टम से सीखना भी है और नए नए सिस्टम को अपनाना। सर Thank मेरा you. एक क्वेश्चन है। Thank you. Yes. सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। एम आई ऑडिबल? Yes, yes. आवाज आ रही है आपकी, अच्छी है, गुड। सर अभी न्यू जनरेशन जो लॉयर हैं अभी AIB 19 का एग्जाम दिए हैं, फिर फर्दर उनको एग्जाम देना है और इंडिया बार एग्जामिनेशन का। तो अभी जो दोनों क्रिमिनल लॉ साथ में पढ़ना है, अभी कितने दिनों तक ये दोनों क्रिमिनल लॉ बायलेटरली पैरेलली इन लागू रहेगा, इम्प्लीकेट रहेगा? मतलब कुछ साल तक तो मेरे को लगता है कि दोनों ही क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ेगा जैसा। नहीं, अब एक्चुअली क्या है, अभी बहुत आगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे तो बहुत आगे पढ़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल, 15 साल, 18 साल बाद केस आता है, समझिए आप। जो 29 जून, 28 जून, मैं 25 ठीक हूँ, आप जून, बताओ कैसी हो आप? जो जून 2024 में रजिस्टर्ड हुए कहाँ पे केस हो आप? कहाँ आएंगे? वो आपके पास आएंगे 15 साल, 20 साल बाद। तो आपको तो आईपीसी से पढ़ना पड़ेगा। अब ये समुंदर बढ़ गया है, आपको पिछला भी हाँ, पढ़ना पड़ेगा नए लॉयर्स के लिए। हम लोग तो चलो उसको तो पढ़े लगा हुए दो हैं, सील हमें नया पढ़ना पड़ रहा है। लैब के पास। हमें नया पढ़ना पड़ रहा है, आप लोगों को दोनों पढ़ने पड़ेंगे। ये है, तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है, आप तो छात्र जीवन से निकले हैं अभी, तो आप में अभी कैचिंग पावर भी अच्छी है। हम लोगों की वो खत्म होती जा रही है, तो इसलिए आप दोनों पढ़िए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आने पर, ऑनरेबल हाई कोर्ट तक के 15 साल लगते हैं क्रिमिनल प्रैक्टिस। तो उसमें आपको फिर आईपीसी के अनुसार ही समझाना पड़ेगा। अब 1 जुलाई के बाद जो आ रहा है बीएनएस और बीएनएस, तो इसमें आपको ये वाला चलाना पड़ेगा, इस पर आधार पर दोनों चीजें चलानी पड़ेंगी।